Hi everyone, welcome to this youth meeting and very happy to see all of you joining in today. Such a important topic as we see sharing gospel with friends and colleagues. It is a very important and blessed responsibility that Christ has blessed us with, and uh, we look forward to listening to this session today by Brother Johnny Vergis. Yeah, thank you so much, Sophia. Thank you, Stefan, for that wonderful worship. It's a joy to be with all of you this evening. धन्यवाद देते हैं सोफिया और ब्रदर स्टेफिन को। और खुशी की बात है कि इस शाम को आपके साथ जुड़े हुए हैं। We want to learn something about sharing the gospel with our colleagues and our friends. और आज हम थोड़ा सीखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे दोस्तों के साथ और सहकर्मियों के साथ शुभ वर्तमान हम बांट सकते हैं। And ultimately, we hope that in the process of preaching or giving the gospel to those around us, we hope that some of them might even turn to Christ, give their lives to Christ. और अंत में हम यही इच्छा करते हैं कि जब हम उनसे ये सुसमाचार बांटेंगे तो उनमें से कुछ लोग जो है वो मसीह को पहचानेंगे और उन्हें स्वीकार करेंगे। In the New Testament, we have this term used, like Paul uses the term spiritual son for Timothy. और नए नियम में जैसे पौलुस तिमुथियुस को आत्मिक रूप से बेटा करके पुकारते हैं। So when we lead people to Christ, it's like having spiritual sons and daughters. तो उसी प्रकार से जब हम लोगों को मसीह के पास ले आते हैं तो उस प्रकार से वो आत्मिक रूप से हमारी संतान होते हैं। Of course, physically also, we marry and we have children. और शारीरिक रूप से भी हम शादी करते हैं और हमारी संतान होती है। In order to reproduce, you have to be healthy. और संतान पैदा करने के लिए हमें हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। And children cannot give birth to children. A child needs to grow and become an adult, then he or she can produce children. और बच्चे जो है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक बच्चे को जो है वो वयस्क बनना पड़ता है और तब जाके जो है वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। And we can also put it this way, reproduction is a natural consequence of a person who is healthy and a person who is grown up. और इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति जो है वो वयस्क हैं और शारीरिक रूप से जो है वो स्वस्थ हैं, वो संतान पैदा कर सकते हैं। So if we are not reproducing, it means that there is something wrong with our health. और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, संतान हम नहीं पैदा कर सकते हैं, तो कुछ समस्या है जो शारीरिक रूप से है। Now, someone might say that I'm spiritually healthy and I share the gospel, but no one is willing to listen. So it's not my fault if they don't listen and they don't come to Christ. और हो सकता है कि कुछ लोगों का ये मानना होगा कि मैं आत्मिक रूप से स्वस्थ हूँ और मैं तो सुसमाचार बांटने का काम करता हूँ, लेकिन ये लोगों की समस्या है कि वो मसीह को नहीं पहचान पाते हैं। We do have examples like that in the Bible, like Noah preached, Jeremiah preached, and nobody was willing to listen to them. और कई सारे उदाहरण पवित्र शास्त्र में भी हम देखते हैं, जैसे कि नूह के बारे में या फिर यिर्मयाह के बारे में, जो लोगों को उन्होंने सुसमाचार बांटा लेकिन कुछ उसका हुआ नहीं। But we find that even in their case, they produced fruit over the long term. Like because of Noah or because of Jeremiah, many people have been blessed, many people have been brought closer to God over the long term.
परंतु उनके विषय में अगर हम देखेंगे तो हम ये पाते हैं कि अ, अगर समय जो है वो लंबा खींच कर हम देखेंगे तो कुछ समय बाद जो है वो उन्होंने जो सुसमाचार बांटा था उसका फल उन्हें दिखाई दिया। Yeah. So my point is that a person who is healthy, a person who is mature, is bound to produce fruit. तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है वो स्वस्थ है और परिपक्व है तो उनसे फल जरूर मिलेगा। So, in order to be able to share the gospel with our friends and colleagues and others, we need to focus on our growth, or we need to focus on, getting close to God, which will enable us to do that. और इसीलिए अगर हमें अपने दोस्तों के साथ या फिर हमारे सहकर्मियों के साथ शुभ वर्तमान बांटना है तो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के और करीब जाएं और विश्वास में परिपक्व बने। Yeah. I want to share 2 or 3 qualities of a believer that will help him or her to share the gospel. और मैं बांटना चाहूँगा ऐसे 2 या 3 गुण लक्षण एक विश्वासी के जो उसे सुसमाचार बांटने में मदद करेंगे। Yeah. Let us read from Psalm 18, verse 1 and 2. भजन संहिता 18 अध्याय उसका 1 और 2 आयत हम पढ़ेंगे। तो आप पढ़ सकते हैं? हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। Yes. And please read verse 49 also. इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। So here David is very grateful, and he is filled with joy towards God because God has delivered him. और यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो परमेश्वर के प्रति बहुत खुश है और परमेश्वर से वो धन्यवाद कर रहा है क्योंकि उसने परमेश्वर ने उसे छुड़ाया है। And therefore he says, I will give thanks to God among the nations, among the people who do not know him. तो इसीलिए वो कह रहा है कि वो लोगों के सामने जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके सामने वो परमेश्वर को धन्यवाद देगा। So here is a principle that if we are filled with joy, then we will automatically want to share it with other people. तो यहाँ पे हमारे लिए सीख है, अगर मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ और मेरे हृदय में आनंद है तो वो मैं दूसरे लोगों के साथ बांटना चाहूंगा। In Philippians, the Apostle Paul tells the church there, rejoice in the Lord. Again, I say, rejoice. फिलिपियों का 4:4 में हमें पौलुस बताता है कलीसिया को, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। So rejoice at who God is, at how He has revealed Himself to you. और किस बात का आनंद मनाना है कि परमेश्वर कौन है और किस प्रकार से उसने अपने आप को हमें प्रकट किया है। And rejoice in who you are in Christ. और साथ ही में हमारे बारे में भी आनंदित करना है कि किस प्रकार से हम मसीह में हैं। That will attract people, or that will help us to share to others. और ये हमें मदद करेगा दूसरे लोगों के साथ सुसमाचार बांटने में। In Romans 14:7, it says, the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. 14:7 is it? 14:17, yeah. रोमियों का 14 का 17 में हम पढ़ते हैं कि क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। Yeah, and joy is one of the qualities which make up the fruit of the Holy Spirit. और हम देखते हैं कि आनंद एक गुण लक्षण है जो पवित्र आत्मा के फलों में भी शामिल है। So when we have this joy because of closeness to God, that becomes a magnet for other people. तो इस प्रकार से जब हम परमेश्वर के करीब होते हैं, सन्निध होते हैं और हमारे अंदर वो खुशी महसूस की जाती है जो दूसरे लोगों को हमारे प्रति आकर्षित करती है।
Once I was traveling the train, it was the reverse direction. Very few people were there. और एक दिन मैं जो है वो ट्रेन से सफ़र कर रहा था और मैं उल्टी दिशा में जा रहा था, तो बहुत कम लोग वहाँ पे थे। And there was a man sitting on the opposite seat, and then he asked me a question. और एक व्यक्ति जो है वो मेरे सामने वाली कुर्सी पे बैठा था और उसने मुझे एक सवाल पूछा। Are you going through some problem in your life? और सवाल ये था कि क्या आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं अपने जीवन में? Because that was what the look on my face communicated. और ये इसलिए क्योंकि मेरा चेहरा देखकर उन्हें ऐसे लगा। But that's the problem. Sometimes the joy is not visible on our face. और ये समस्या है क्योंकि कई बार ये आनंद जो है वो हमारे चेहरे पर नहीं दिखाई देता। And we live in a world in which people are stressed and in which people are troubled. Joy and peace are what they want to have. They need to see it in us. और हम इस प्रकार के संसार में जीते हैं जहाँ पे लोग जो है वो पीड़ित और थकान से भरे हुए हैं, और वो हमारे अंदर जो है वो आनंद और हमारे चेहरे पर जो है वो खुशी और शांति देखना चाहते हैं। Yeah, then let us read Acts chapter 4, verse 13. प्रेतों के काम 4 का 13 पढ़ेंगे। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। Yeah. So here you see that the time that the apostles spent with Christ was visible in their character, was visible in their boldness, their conduct, and so on. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चेलों ने जो समय मसीह के साथ बिताया, उसकी वजह से उनके चरित्र में या फिर उनके चाल चलन में, उनके चेहरे पर वो जो विश्वास और जो खुद के ऊपर जो विश्वास है वो दिखाई देता था। So you and I need to ask ourselves, do we have joy? तो आप और मुझे हमें अपने से ये सवाल करना है कि क्या मैं आनंदित हूँ? Do we have wonder when we look at the cross, wonder when we look at God? और क्या जब हम क्रूस के प्रति देखते हैं या फिर परमेश्वर के प्रति देखते हैं, तो क्या हम अचंभा करते हैं? If yes, then we will be in a position to preach the good news to our friends. और अगर उत्तर इसका हाँ है, तो हम अपने दोस्तों के साथ सुसमाचार बांट सकते हैं। If not, we should take this problem to God and say, God, you deal with me. I'm not having this joy and this wonder and this amazement at beholding you. और अगर नहीं ऐसा उत्तर है, तो ये समस्या जो है वो हम परमेश्वर के सामने ले जाएंगे और उनसे कहेंगे कि परमेश्वर, ये जो आनंद और ये अचंभा जो है, आश्चर्य जो है आपके प्रति, वो मेरे अंदर नहीं है, तो ये समस्या आप हल कर दो। Yeah. Now let us see another principle. We'll go first to Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. और दूसरा प्रिंसिपल हम देखेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 12 अध्याय 1 और 2 वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास से कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। Yeah. Now, what does this have to do with preaching the gospel? इसका क्या ताल्लुक है सुसमाचार बांटने से? Here the Christian journey or Christian life is compared to a race or a long journey. यहाँ पे जो है वो एक मसीह जीवन जो है वो उसकी तुलना जो है वो एक लंबा मानो कि कोई दौड़ने की स्पर्धा है, उससे तुलना की गई है। And sharing the gospel means inviting other people also to come and join this journey. और सुसमाचार दूसरों के साथ बांटना, इसका मतलब ये भी है कि उन्हें न्योता देना कि वो भी आकर इस सफर में आपके साथ शामिल हो। Sometimes we have had this experience that you say that, you tell your friend, I'm going to check out this new mall or this new shop or this new restaurant that has come.
and or we are going to that beach, we have not gone that place before, and then your friend asks, okay, can I also come? और ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कई बार जो है वो कुछ नया चीज़ हम ढूंढते हैं और वहाँ जाने की हम योजना बनाते हैं, जैसे मॉल हो या फिर नया कोई बीच हो, नया कोई होटल हो, नया रेस्टोरेंट। और जब हम दोस्तों के साथ ये बांटते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। Yeah. So now the thing is, will our journey attract other people also to join? तो सवाल ये है कि क्या हमारा भी जो सफ़र है वो दूसरों के साथ अगर हम बांटेंगे या वो देखेंगे तो क्या वो भी आकर्षित होकर हमसे जुड़ जाना चाहेंगे। If other people see us actively pursuing God in our journey, then it will look to them that, oh, look, there is something worthwhile that this person is going after. Let me see what it is. और अगर वो हमसे हमारे जीवन से ये देख पाते हैं कि हम सक्रिय रूप से किस प्रकार से परमेश्वर की खोज में सफ़र कर रहे हैं, तो फिर वो उनके मन में ये आकर्षण जाग उठेगा और वो शायद हमारे सफ़र में शामिल होना चाहेंगे। So there was a time when students used to come to my home and I used to teach them at home. और एक समय था जब छात्र जो है वो मेरे घर पर आते थे और मैं उन्हें वहाँ पे घर पर पढ़ाता था। So once I got into a conversation with one of my students and it went to the gospel and I explained the gospel to her and I was showing my Bible to her. और एक बार ऐसे हुआ कि मेरी छात्र जो है वो उसके साथ बात करते समय जो है वो मैंने उन्हें सुसमाचार बताया और उसका स्पष्टीकरण दिया और पवित्र शास्त्र से भी उन्हें वचन पढ़कर बताएं। And there were lots of books in a shelf at home and she was asking that, okay, so are all these books also related to the Bible? और वहाँ पे घर में अलमारी में बाकी सारी भी किताबें थी और उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या ये सारी किताबें भी पवित्र शास्त्र से ही जुड़ी हुई हैं। So I said yes, because they were Bible related books. और मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि वो सारी किताबें पवित्र शास्त्र से ही जुड़ी थी। Now, there was one book lying outside. It was a big commentary on the book of Revelation. और वहाँ पे ही एक बड़ी किताब जो है वो बाजू में थी और ये जो है वो प्रकाशित वाक्य के ऊपर जो कमेंट्री है वो थी। And I was using a small Bible, so Revelation was a few pages of my Bible that time. और मैं जो है वो छोटा जो पवित्र शास्त्र होता है वो इस्तेमाल करता था और पवित्र प्रकाशित वाक्य का हिस्सा जो है वो अंत में छोटे से कुछ पन्ने थे। So I told the student that, see, this small part, this is the last book of the Bible. It's few pages in my Bible. That big book you see there is completely devoted to only these few pages. और फिर मैंने उस छात्र को बताया कि ये जो पवित्र शास्त्र में अंत के जो प्रकाशित वाक्य के कुछ पन्ने हैं और उन्हीं पन्नों के बारे में ये जो बड़ी किताब है उसका विश्लेषण यहाँ पे है। And if you look at the bibliography in that book, you will find a long list of books which are written only on this revelation. और अगर उस किताब की आप किताब की रेखा आप बिब्लियोग्राफी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कई सारे ऐसे किताबों के नाम आपको मिलेंगे जो केवल इसी प्रकाशित वाक्य के ऊपर है। So now the point that I was trying to make is, what we really believe that this is the word of God. So we are serious about studying this book. और यहाँ पे मुद्दा ये है बताने का कि हम जो है वो वचन को स्वीकार करते हैं पूरी तरह से परमेश्वर का वचन के स्वरूप में और इसीलिए हम गंभीरता से इसके बारे में अध्ययन करते हैं। And if people see that we are taking our faith seriously, that will catch their attention and they will also want to check it out. और जब लोग ये महसूस करते हैं कि किस प्रकार से कितनी गंभीरता से हम अपने विश्वास के बारे में पेश आते हैं तो वो भी आकर्षित हो जाते हैं जानने के लिए कि आखिर ये है क्या। So here in Hebrews, we see that if you want to run your race well, you have to let go of certain things that hold you back. और इस प्रकार से इब्रानियों में हम देखते हैं कि अगर ये जो दौड़ है हमें सही तरह से अगर दौड़ना है तो कुछ चीज़ें जो है वो हमें पीछे छोड़नी पड़ेगी।
we all have something or the other that might hold us back or that might attract us or distract us and so on. हम जानते हैं कि हमारे हर एक के व्यक्तिगत रूप से हम कुछ चीज़ें जो है वो हमें आकर्षित करती है, कुछ चीज़ें जो है वो हमें खींच कर पीछे रख देती है। For some people, maybe sexual immorality is a weakness. They want sexual pleasure more than they want God. और कुछ लोगों के बारे में ये सही होगा कहना कि उन्हें जो है वो परमेश्वर से ज़्यादा जो है वो लैंगिक रूप से जो है वो अनेकता ज़्यादा उन्हें पीछे खींचती है। Some people are so worried about what other people think of them. You want the approval of others, you want the validation of others, you want popularity. That is our idol. And if we have an idol like that, then we cannot progress in our spiritual life. और कुछ लोगों के बारे में जो है वो दूसरे लोगों के नज़र में वो कैसे क्या समझते हैं, दूसरे लोग उनके बारे में किस प्रकार से वो पेश आते हैं और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, कितना मशहूर है वो लोगों के बीच में, ये सारी चीज़ें जो है वो उन्हें परमेश्वर से ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण लगती है। Maybe it is our materialism. Maybe we want a very high standard of living. We are looking in that direction. So if you look in that direction and pursue that, then you might get it, but you're not going to win people to Christ. कई लोगों के बारे में भौतिक रूप से जो उपलब्धियां उनके पास है या फिर संसार की नज़र में जो चीज़ें जो है वो जो आराम की चीज़ें हैं उनके पीछे वो दौड़ते हैं और शायद आपको मिल भी जाएंगी अगर आप उनके पीछे प्रयास करोगे, लेकिन ये चीज़ें जो है वो लोगों को आपके प्रति मसीह के लिए आकर्षित नहीं करेगी। Yes. Perhaps some of us are upset or are feeling bad because something has happened in our life. We are disappointed. And because of that, we are not running our race firmly. That is a problem that needs to be dealt with. और कुछ लोगों के बारे में जीवन में कुछ ऐसा किस्सा हुआ है या फिर ऐसा कुछ हादसा हुआ है जिसकी वजह से जो है ये दौड़ जो है आत्मिक दौड़ हम सही से दौड़ नहीं पा रहे हैं। Yes. Our message is a very big or a very great or a stupendous message. हमें समझने की जरूरत है कि जो संदेश हमारे पास है ये महान संदेश है। We are saying that God has come down from heaven to earth in order to save me by dying for me. हम ये कह रहे हैं कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर मेरे लिए आए और मेरे लिए जो उन्होंने बलिदान दिया उस बलिदान की वजह से मेरा उद्धार हुआ। If so, you and I should be really pursuing this God, really actively seeking Him more and more. और अगर ये बात है तो कितना उत्साहित होकर और कितना सक्रिय रूप से हमें उस परमेश्वर को खोजना चाहिए। So the life should match with the message. तो इस प्रकार से जो संदेश है और उसी के अनुसार हमारा जीवन शैली भी हो। Yeah. Then let us read one verse, Proverbs chapter 22, verse 29. नीति वचन का 22 का 29, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। Yeah. Now, what does this have to do with sharing the gospel? इसका क्या ताल्लुक है सुसमाचार बांटने से? In our workplace, our credibility, people will be able to believe us if we are good in our work. जहाँ पे हम काम करते हैं अगर लोगों को आसान होगा हमारे ऊपर विश्वास रखने में अगर जो काम करते हैं उसमें हम निपुण हैं। So once 2-3 students were there and they told me that we don't believe in the existence of God. और एक बार ऐसे हुआ कि 2-3 छात्र थे वहां पे और उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर हैं ये विश्वास नहीं करते। So I said, I believe that there is a God. I believe in the existence of God, and I believe that there is a good evidence also for that. तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर है और उसके बारे में अच्छा खासा सबूत भी है। And later on, one of those students, he told me like this. और बाद में उनमें से एक छात्र ने मुझसे कहा,
See, when you said that there is that you believe in God, no, then I thought that there must really be a good reason to believe in God. Otherwise, you would have not said that. अगर आपने कहा कि मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ या फिर परमेश्वर मानता हूँ, तो जरूर कोई अच्छा कारण होगा, नहीं तो आप विश्वास नहीं करते। Yeah. Why like that? It is the quality of our work which gives us that credibility, so that when we say something, people take us seriously. और ये क्यों हुआ? क्योंकि जिस प्रकार का हम काम करते हैं, उस काम की वजह से लोग जो है वो हमें विश्वसनीय ढंग से स्वीकार कर पाते हैं। Yeah. So we saw two principles so far. One is joy with God, and the second was actively pursuing God. तो इस प्रकार से दो सिद्धांत अब तक हमने देखे। पहला था कि परमेश्वर की वजह से आनंद, और दूसरा सक्रिय रूप से परमेश्वर को खोजना। Yeah. Then the third principle I want to lay before you from Matthew chapter 6 verses 9 and 10. तीसरा सिद्धांत हम देखेंगे मत्ती का 6 अध्याय उसका 9 और 10 आयत से। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। To evangelize requires us to have a great desire that God's kingdom would come down on earth. अगर हमें सुसमाचार फैलाना है लोगों के बीच में, तो हमारे हृदय में ये बड़ी इच्छा होनी जरूरी है कि परमेश्वर का राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। The Lord will set up a physical kingdom in the future. यकीनन परमेश्वर जो है वो भौतिक रूप से उसका राज्य यहाँ पे आने वाले समय में प्रस्थापित करेंगे। But now his kingdom is in the hearts of people. परंतु अभी इस वक्त उनका राज्य जो है वो लोगों के हाथ में है। And it should be your desire and my desire that his kingdom spreads more and more in the hearts of people. So we need to have this burden for the spread of the kingdom. तो इसीलिए जरूरी है कि हमारे हृदय में वो बोझ हो कि परमेश्वर का राज्य यहाँ पे इस पृथ्वी के लोगों के बीच में बढ़ जाए। Let us read Mark chapter 4 verse 21. मरकुस का 4 का 21 आयत पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमान या खाट के नीचे रखा जाए, क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? Yeah. Now I'm sure all of us have attended some good Bible study, or we have had some good experience with God. यकीनन हम मानते हैं कि हम में से हर एक ने अच्छा पवित्र शास्त्र अध्ययन का कोई सेशन हो या फिर कोई उपदेश हो, जरूर उसमें हिस्सा लिया होगा। Yes. Now we should ask ourselves, when we understand and appreciate the Bible, do we have a desire that other people also should get to know this? तो सवाल ये है कि जब हम स्वीकारते हैं या फिर वो महसूस करते हैं कि किस प्रकार से पवित्र शास्त्र सही है और अच्छा है हमारे लिए, तो क्या हमारे मन में इच्छा पैदा होती है कि हम दूसरों को भी इस अनुभव को महसूस कर दें? So many amazing things are there in the Bible. Don't you think it's a tragedy that more people don't know those things? और कितनी सारी अद्भुत बातें जो है वो पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं, और क्या ये दुख की बात नहीं है कि कितने सारे लोगों को इस बारे में पता भी नहीं? Let us read Acts chapter 20 verse 31. प्रेरितों के काम 20 का 31 पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना न छोड़ा। This Paul is talking about his ministry in Ephesus. यहाँ पे पौलुस जो है वो उनकी जो सेवकाई इफिसुस में चल रही थी उस बारे में बता रहे हैं। It was a place where there were a lot of temples. Like in our country, you can imagine a place like Tirupati or something like that. और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे, जैसे हमारे देश में अगर मानेंगे तो बोलेंगे तो तिरुपति जैसी जगह। And here Paul had done his ministry, and for us right now, the focus is on the word with tears.
और यहाँ पे जो है पौलुस ने सेवकाई की थी, और अभी हमारे लिए जिस शब्द पर हम ध्यान देंगे वो है आंसू बहा बहा कर। Now, the tears is an indication of the love or the concern that he had for those people. और आंसू से हमें पता चलता है कि कितना प्रेम या फिर कितनी चिंता उन लोगों की थी पौलुस को। Probably we might get tears in our eyes if we lose our job or if our family members get sick or something like that. और हो सकता है कि शायद हमारे आंखों में आंसू तभी आते होंगे जब हम नौकरी में कुछ समस्या हो या फिर परिवार के सदस्यों के बीच में कुछ समस्या आए। Would we get tears in our eyes if we see the lost condition of people around us? क्या दूसरे लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं, किस प्रकार से वो खो गए हैं, ये देखकर क्या हमारे आंखों में आंसू आते हैं? Now, if not, we have to take this matter to God. और अगर ऐसा नहीं है तो ये विषय हमें परमेश्वर के पास ले जाना होगा And ask God, God, my heart is so hard. You deal with me and make me tender-hearted. और परमेश्वर से हमें मांगना है कि परमेश्वर, मेरा हृदय किस प्रकार से कठोर है और इसे आप बदल दो और इसे जो है वो कोमल हृदय में बदला दो। Yes, we need to pray that God, if it requires you to take me through suffering, then I'm willing for that, but change me and make me the kind of person who is burdened for lost people. और प्रार्थना यही करनी है कि परमेश्वर, अगर जरूरत है तो आप मुझे परेशानी या फिर सताव से भी ले जाओ, लेकिन मुझे एक ऐसा व्यक्ति और एक ऐसे हृदय वाला व्यक्ति बनाओ जो ऐसे अंधकार में जो लोग खो रहे हैं उनके बारे में जो उनका बोझ मेरे हृदय पर है। Yes. Now, related to this only, let's also read from Deuteronomy chapter 9. Let us read verse 26 to 29. इसी से जुड़े हुए विषय में हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 9 का 26 से 29। और मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजारूपी नीच भाग जिनको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लिया है, उन्हें नष्ट न कर। अपने दास इब्राहिम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर और इन लोगों की कठोरता और दुष्टता और पाप पर दृष्टि न कर, जिससे ऐसा न हो कि जिस देश से तू हमको निकाल कर ले आया है वहां से लोग कहने लगे कि यहोवा उन्हें उस देश में जिसके देश का वचन उनको दिया था नहीं पहुंचा सका और उनसे बैर भी रखता था, इसी कारण उसने उन्हें जंगल में निकाल कर मार डाला है। ये लोग तेरी प्रजा और तेरा नीच भाग है, जिनको तूने अपने बड़े सामर्थ और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल ले आया है। Now, God said he would destroy the people of Israel, and Moses was pleading with God, saying, please don't do that. और यहाँ पे जो है वो परमेश्वर ने मूसा से बताया था कि किस प्रकार से वो चाहते हैं कि और वो इज़राइल के राष्ट्र के लोगों को मार डालेंगे, और मूसा जो है वो परमेश्वर के सामने विनती करता है ऐसा न करने के लिए। Now, what is Moses concerned about? और यहाँ पे मूसा किस बात से चिंतित है? He is concerned about the glory of God. यहाँ पे उन्हें चिंता है परमेश्वर की महिमा की। Because he says, if you do this, then other people will speak bad about you. और इसीलिए वो कहता है परमेश्वर से कि अगर तूने ऐसा किया तो बाकी लोग तेरे बारे में बुरा कहेंगे। So he is concerned about the glory and the honor of God. तो इसीलिए वो परमेश्वर की महिमा और आदर के बारे में ज्यादा चिंतित है। In a positive sense, when Solomon was praying at the dedication of the temple, Solomon prayed like this, that God, let other people also hear about you and let them know about your greatness and come to this temple and worship you. और सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो शलमोन के बारे में हम यही देखते हैं, जब उसने मंदिर के बारे में प्रार्थना की कि यही प्रार्थना की कि परमेश्वर ऐसा हो कि लोग जो है वो इस मंदिर के द्वारा जो है वो तेरे महानता के बारे में जान सके। Yes. So here again you see that a man of God is concerned that God's glory should spread far and wide.
तो इस प्रकार से यहाँ पे उदाहरण है कि किस प्रकार से इस व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर की महिमा का बोझ है कि वो किस प्रकार से बढ़ती जाए। Yes. Let's read one last verse. That is John 17:1. आखिरी में यूहन्ना का 17 का एक वचन पढ़ते हैं। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। Yes. See, the Lord Jesus is about to go to the cross. यहाँ पे हम देखते हैं कि मसीह जो है वो जल्द ही क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे There is going to be a lot of suffering, and he is going to bear the penalty for sin. और कई सारी सताव और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और जो दंड जो है पाप का दंड अपने ऊपर वो ले जाने वाले हैं। And what is the thought on his mind? और ऐसे परिस्थिति में उनके मन में क्या ख्याल है? It is glory. वो महिमा के बारे में सोच रहे हैं। He is thinking about the glory of God, him being glorified, the Father being glorified. और यहाँ पे वो पिता परमेश्वर की महिमा के बारे में सोच रहे हैं और पुत्र की महिमा और उसके द्वारा पिता की महिमा। I said that we should have a burden for the lost. हमने कहा कि हमें जो खोए हुए हैं उनके बारे में चिंतित रहना है। There is a danger that if they don't hear the gospel and they don't respond to it, they are going to go to hell. और यहाँ पे हम जानते हैं कि खतरा है, क्योंकि अगर वो सुसमाचार सुनेंगे और अगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो वो नरक में जाएंगे। But here we have a greater concern, and that is that God should be glorified. परंतु उससे भी ज्यादा हृदय पर बोझ हमारे लिए ये है कि परमेश्वर की महिमा हो। So that should be a burden. So in order to be able to share the gospel to our friends, these are some of the qualities that we need to have. तो इस प्रकार से अगर हमें सुसमाचार बांटना है दोस्तों के बीच में, तो ये कुछ गुण लक्षण जो है हमारे अंदर होने चाहिए। Yeah. I'm somewhat hesitant to tell you any techniques or any methods that you can use to share the gospel with others. और मैं थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करता हूँ कि कुछ तकनीक या फिर कुछ तरीके जिस प्रकार से आपको सुसमाचार बांटने हैं उसके बारे में बताऊं। Because serving God is not so much about techniques, but it is about being close to God and loving God and being devoted to God. वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की सेवकाई करना ये कोई तकनीक के बारे में नहीं है या फिर किस प्रकार से बात करनी है उस बारे में नहीं है, लेकिन परमेश्वर से कितना मैं करीब हूँ और किस प्रकार से मेरा जीवन उससे मिलता जुलता है उस बारे में है। No doubt there are some practical small things that we can do. और यकीनन कुछ कुछ छोटे छोटे जो चीजें हैं वो प्रैक्टिकली जरूर हमें मदद करती है। For example, if you write your testimony or if you make a video of your testimony and put it online, then maybe your friends will see it, and that will be a way to share the gospel with them. उदाहरण के तौर पे अगर अपनी गवाही आप लिखोगे या फिर उसका वीडियो बनाकर आप सोशल मीडिया पे डालोगे तो आपके दोस्त जो है वो देखकर वो परमेश्वर के बारे में जानेंगे। If our faith is visible on our profile or on our status, then also it is likely that people will see it. They may ask us, even if they don't ask us, they will see it and they may understand something. उसी प्रकार से हमारे स्टेटस के ऊपर या फिर हमारा प्रोफाइल के ऊपर अगर हम परमेश्वर के बारे में लिखेंगे तो हमारे दोस्त जो है वो यकीनन वो पढ़ेंगे और हो सकता है वो सवाल करेंगे। अगर सवाल भी नहीं किया तो लेकिन जरूर वो परमेश्वर के बारे में कुछ तो जानेंगे। Yeah, I have had this practice that if I have not been able to share the gospel with some friend or colleague or something, then at least maybe when he is leaving or on some special occasion, I would gift him a Bible, and that would either be the start of a conversation or at least he would have that Bible with him. So maybe from there he would be able to understand the gospel.
और मैं ऐसा करता हूँ कई बार कि जब मैं किसी के साथ सुसमाचार नहीं बांट सका किस कारण से, तो जब उस व्यक्ति के साथ मेरा जुदा होने का समय आता है तो मैं उन्हें, या फिर कुछ खास मौके पर मैं उन्हें पवित्र शास्त्र जो है वो तोहफे के रूप में देता हूँ, ताकि कम से कम पवित्र शास्त्र उस व्यक्ति के साथ हो और आगे चल के वो उसके जीवन में उसका उपयोग करे। Yeah, but beyond that, it has been my experience that when you are close to God, opportunities will come, and you will at that moment you will have the wisdom to say something which will start a conversation on the gospel. और मेरा ये वैयक्तिक अनुभव रहा है कि जब हम परमेश्वर के करीब रहते हैं तो परमेश्वर जो है वो मौके अपने आप हमारे जीवन में देता है, और ज्ञान भी देता है कि हम ऐसा कुछ कह जाते हैं कि वहाँ से संवाद शुरू होता है और हमें सुसमाचार बांटने का मौका मिलता है। Sometimes it happens just when we are just truthful and we are just saying that this is the truth. That itself becomes an opportunity to share the gospel. और कई बार ऐसे भी होता है कि हम जो है वो सच्चाई से जो है वो सुसमाचार बताते हैं, और उस प्रकार से ये मौका अपने आप तैयार होता है। Like once it happened with me like this, that I was in a meeting with my boss. और जैसे मेरे साथ एक बार हुआ कि मैं अपने जो अधिकारी है उनके साथ मेरी मीटिंग चल रही थी, And he was talking about his plan to start some special center in another place, like in the Navi Mumbai side. And he was trying to tell me that I want you to be involved there, and things like that. और वो जो मीटिंग थी वो योजना के बारे में थी, किस प्रकार से वो चाहते थे कि एक नई जगह जैसे नवी मुंबई में उन्हें नया केंद्र जो है वो स्थापित करना था, और वो चाहते थे कि मैं उसमें हिस्सा लूं। So he asked me, are you willing to travel that distance and all that? और फिर वो इसीलिए मुझे सवाल कर रहे थे कि क्या आप जाना चाहोगे उतनी दूर पर। So I said that, yeah, I'm willing to travel there, but if it requires me to be at that place, like to stay over there, then I don't think that would be possible. और फिर इसलिए मैंने कहा कि मैं वहां से आना जाना कर सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसी कोई जरूरत है कि मुझे वहीं पे रहना पड़ेगा तो शायद वो संभव संभव नहीं होगा। Um, and I think he asked, or on my own, I said the reason is that I'm involved in Thane only, in the place where I stay. I'm part of a church, and I'm involved in the activities there. So I won't be able to stay in another place. और पता नहीं, मुझे याद नहीं कि उन्होंने पूछा या मैंने ही कहा, मैंने उन्हें बताया कि किस प्रकार से मैं जहाँ पे रहता हूँ थाने में वहाँ की कलीसिया के कामों में जो है वो मैं सक्रिय रूप से हिस्सा लेता हूँ, और उस वजह से मैं ये नवी मुंबई में रह नहीं पाऊंगा। So then he said that, oh, is it so? Actually, I also wanted to know what does the Bible say? और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, वास्तविक रूप से मैं भी जानना चाहता हूँ कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है। So I had the chance to explain the gospel in detail to him because he only asked. और फिर यहाँ पे मुझे मौका मिला कि विवरण सखोल रूप से मैं बता पाया कि सुसमाचार क्या है, क्योंकि ये सवाल उन्होंने ही मुझसे पूछा। Actually at that time, for some time I was not happy in the job, but then when I had that opportunity, I thought, this one opportunity is worth it. Although I was not liking being in that workplace and all that, but it is worth it if I got the chance to share the gospel with this man who probably otherwise wouldn't hear it. और फिर तब जाके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं जिस जगह पे मैं काम करता था पहले मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था और वो काम भी पसंद नहीं था, लेकिन अगर मुझे ये मौका मिला है और मेरी इस मौके की वजह से अगर इस व्यक्ति को सुसमाचार में बांट पा रहा हूँ तो ये जो काम जो है वो इस परमेश्वर का जो योजना था वो पूरा हो गया यहाँ पे। Yeah. So it's like this. You just be yourself with God. You be close to God. तो इसलिए केवल एक ही बात अहम है और वो है परमेश्वर के करीब रहे। If you're free in the office, you can read the Bible.
अगर आपके पास समय है जहाँ पे आप काम करते हैं वहां पे, तो आप पवित्र शास्त्र पढ़ सकते हैं। It has happened with me that I have been reading the Bible and then somebody asked me, "What are you reading?" और मेरे साथ ऐसे हुआ है कि जब मैं पवित्र शास्त्र पढ़ रहा था तो लोग मुझे पूछा किसी ने कि तुम क्या पढ़ रहे हो। And that person went back home and started reading the Bible by herself because she was very surprised to see why is he not checking, social media and internet when he has some free time. और फिर उस व्यक्ति ने जाके वापस अपने घर में भी पवित्र शास्त्र पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उन्हें अचंभा हुआ कि खाली समय में ये व्यक्ति व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया क्यों चेक नहीं कर रहा है और पवित्र शास्त्र क्यों पढ़ रहा है। But don't do that just to create an opportunity. Do that because that is what you really want to do. You really love God. You really want to get close to God. Do that out of genuineness. और ये केवल मौका तैयार करने के लिए ना करें, परंतु अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं और करीबी हैं तो अपने आप ये आप करोगे। So develop this closeness and love for God, then the opportunities will automatically come and you will automatically get wisdom what to say, what to do, and how to share the gospel. तो इसीलिए अहम बात यही है कि परमेश्वर के हम करीब जाने की कोशिश करेंगे और उसका प्रेम हासिल की कोशिश करेंगे, तो अपने आप जो है वो मौके जो है परमेश्वर तैयार करेगा और वही हमें ज्ञान भी देगा, बुद्धि भी देगा कि किस प्रकार से हमें सुसमाचार उस समय बांटना है। May God help us to be good witnesses for Him. प्रार्थना यही है कि परमेश्वर करे उसकी गवाही बनकर लोगों के सामने पेश आने में मदद करे। Thank you, Brother Johnny. Thank you, Brother Rajesh.